Very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to E Takshila classes. I am Kabir Srivastava, who is going to present you NDA 2020 previous year question based on geography. So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे आई हुई सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. So, starting with the very first question. The first question is New Zealand is considered part of which one of the following island groups? Options are Micronesia, Melanesia, Polynesia. Fourth option is Hawaii Island chain. So the answer is Polynesia. Option number 3. Here you can see this whole part is Polynesia, which is a group of island, right? And here in this green part you can see New Zealand. So New Zealand lies in Polynesia group of islands, right? Moving on to the next question. Which country is called as country of winds? India, Denmark, China or Germany? So the correct answer is second option, Denmark. So why Denmark is called country of winds? Because they first of all वहाँ पे जो winds का जो confluence है वो बहुत ज़्यादा है, and that is why it is one of the leading nation in terms of wind power, right? सो आपने अभी रिसेंटली देखा अभी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट और डैनिश गवर्नमेंट, दैट इज डेनमार्क गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है ग्रीन एनर्जी को लेके. सो ये इस क्वेश्चन का एक बेस भी हो सकता है. सो दैट इज अ करंट अफेयर ओरिएंटेड ज्योग्राफी क्वेश्चन, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दीनदयाल पोर्ट इज लोकेटेड एट केरला, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश. द करेक्ट आंसर इज गुजरात. सो दीनदयाल पोर्ट को हम कांडला पोर्ट भी बोलते हैं, और कांडला पोर्ट पे ही फर्स्ट बैच ऑफ चीनूक हेलीकॉप्टर्स, फर्स्ट 4 हेलीकॉप्टर्स, जो फर्स्ट बैच था जिसमें 4 हेलीकॉप्टर्स थे चीनूक, वो आए थे कांडला पोर्ट पे, राइट? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कांडला पोर्ट. ओके, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस स्टेट इज गुजरात, एज वी ऑल नो, राइट? सो कांडला पोर्ट इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Krishna Raja Sagar Dam is located on which of the river? Krishna, Tungbhadra, Godavari or Kaveri? The correct answer is Kaveri. As you can see here, this is the path of Kaveri river, right? It falls in Bay of Bengal. Yeah, it falls in Bay of Bengal. And here you can see Krishna Raja Sagar Dam lies on Kaveri river and it is in the state of Karnataka. Okay. So moving on to the next question. Which of the following states do not share international boundaries with 2 or more countries? Options are Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram, Tripura. The correct answer is option number 4, Tripura. Here is how. You can clearly see that Arunachal Pradesh share boundaries with 3 countries. First is Bhutan here, then this is China, and then this is Myanmar. Okay, this line you can see as this line separates, India, China and Myanmar. Talking about Assam, you can clearly see Bangladesh. Okay, here you can see Assam and Bangladesh, and then this border. Okay, and हमने सुना भी है CA बिल के टाइम, ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स असम आ जाते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट एक आइडिया आप वहाँ से भी लगा सकते हैं कि बांग्लादेश ऑब्वियसली असम के साथ बाउंड्री तो शेयर करता ही करता है, राइट? दूसरी कंट्री है हमारी असम के साथ जो बाउंड्री शेयर करती है वो है भूटान. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिस पार्ट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट आवर थर्ड ऑप्शन, मिजोरम. मिजोरम, एज यू कैन क्लियरली सी, दिस इज म्यांमार, उसके साथ तो शेयर कर ही रहा है. देन दिस पोर्शन of Bangladesh. Here you can see. Now talking about Tripura, which is the correct answer of this question. त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ओके. और ये त्रिपुरा, अगर आप इंडियन स्टेट्स की बात करें तो मिज़ोरम के साथ बाउंड्री शेयर करता है और एक असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है. सो क्लियरली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पनामा कैनाल ओपनड इन 1940 lies between. Correct answer here is Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Here is how. Here you can see this Panama Canal.
Okay, right. This is Panama Canal, this is Atlantic Ocean, and this is Pacific Ocean. Here I can zoom in. Here you can see Panama Canal. This is Atlantic Ocean, and इसकी trajectory ये रही, or you can say path. Then this is Pacific Ocean. Okay, so this is the correct answer, and here you can see uh, this part is Panama City. Okay. Now the next question is, which one of the following terms describes the practice of growing two or more crops simultaneously on the same piece of land? सो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप एक पीस ऑफ लैंड पे एक ही टाइम पे, लाइक अगर जून का महीना चल रहा है तो उसी टाइम पे आप दो क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक सेम पीस ऑफ लैंड पे उगा रहे हो. ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बेस्ड CAPF 2020 में आया था. सो इसका करेक्ट आंसर है इंटरक्रॉपिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस लाइज बिटवीन कास्पियन सी एंड ब्लैक सी? So the correct answer here is Caucasus. Yeah. Sorry. Here you can see this is Greater Caucasus. Okay. And this is Lesser Caucasus. जैसे हमारे इंडिया में ग्रेटर हिमालयस होते हैं, लेसर हिमालयस होते हैं, आउटर हिमालयस होते हैं, ट्रांस हिमालयस होते हैं, वैसे ही रशिया के पास और कॉकेसस माउंटेन्स के भी हमने कुछ प्रीफिक्स दिए हैं, ग्रेटर कॉकेसस, लेसर कॉकेसस. आप इसके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं क्लियरली ब्लैक सी है और राइट साइड में कास्पियन सी. ओके, सो अगेन अ मैप बेस्ड क्वेश्चन. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉरेन कंट्रीज डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सी? Syria, Jordan, Armenia, Azerbaijan. Look, Syria and Jordan share their coastal boundaries with Mediterranean Sea. Okay, Azerbaijan share its international means coastal boundary with Caspian Sea. The only remaining option here is Armenia. Armenia is a landlocked country. Okay, here is the explanation. You can see this is Armenia, this is Iran, this is Turkey, this is Georgia, and this is Azerbaijan. These are the neighboring countries, or you can say yes, neighboring countries, or the countries which share international boundaries with Armenia. Okay, and आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कास्पियन सी जो कि अजरबैजान के साथ बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है. तो आर्मेनिया तो हुआ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो ऑप्शन हमारा आर्मेनिया सही होगा. और अभी ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज़ अ करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन. आप कह सकते हैं करंट डेवलपमेंट. लाइक अभी एक छोटा सा वॉर हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, इस रीजन में नागोर्नो काराबाख. ये एक डिस्प्यूटेड एरिया था जिसे अजरबैजान ने अब वापस क्लेम कर लिया है बिकॉज दे हैव वन द वॉर. सो ये एक करंट डेवलपमेंट जियोपॉलिटिक्स में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अगर इस इशू को थोड़ा सा डिस्कस किया जाए तो अजरबैजान और आर्मेनिया के वॉर में टर्की का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा है बिकॉज टर्की ने अजरबैजान को बहुत ऐसे ड्रोन्स हैंड ओवर किए हैं या लीज पे दिए हैं, या आप कह सकते हैं अजरबैजान ने प्रोक्योर किए हैं जो कि अटैक कर सकते हैं, बेसिकली अटैक ड्रोन्स. सो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में भी जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो इंडो पैसिफिक को कवर करते हैं वो अभी ये सिग्नल कर रहे हैं कि इंडिया को भी अटैक ड्रोन्स पे अब फोकस करना चाहिए बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ सर्विलियंस ड्रोन्स ही हैं. एंड टू काउंटर एडवर्सरी लाइक चाइना एंड पाकिस्तान आपको अटैक ड्रोन्स जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करने पड़ेंगे. और अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी चाइना से अटैक ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं. ओके, नाउ हियर यू कैन सी सीरिया. Here you can see सीरिया मेडिटेरेनियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है. आपने तो सुना ही होगा सीरियन जो माइग्रेंट्स थे जब वॉर हुआ था वहाँ पे, तो वो इसी पैसेज के इसी रास्ते के थ्रू जाते थे. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में. देन जॉर्डन आपको लगेगा कि लैंडलॉक्ड कंट्री, बट अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके तो आपको दिखेगा कि ये एक बाउंड्री शेयर करता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Baglihar, Dulhasti and Salal hydro power project lies on which of the following rivers? This question is little bit confusing because जितनी भी ये rivers हैं, चेनाब, झेलम, ब्यास, रावी,
चेनाब, ये सारी एडजेसेंट रिवर्स हैं, एक दूसरे की आप कह सकते हैं मतलब एक दूसरे को ज्वाइन भी करती हैं, ठीक है। सो और इनके जो ओरिजिनेशन वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट, वो भी बहुत क्लोज है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो चेनाब ओनली, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। है यू कैन सी बगलीहार, यहाँ पे ये पूरी चेनाब रिवर है, दिस, ओके, दिस होल इज चेनाब रिवर, इट्स पाथ, बगलीहार, सलाल, and this one is, here you can see Dulhasti here, okay। so ये पावर प्लांट्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो चेनाब रिवर पे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल कोल्ड विंड। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, द ऑप्शन नंबर, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3, मिस्ट्रल, ओके। चिनुक अमेरिका में विंड पाई जाती है जो कि गर्म हवा है। लू, इंडियन सीजनल विंड्स, हम कहते हैं ना कि लू लग गई, तो दिस लू इज ऑल्सो हॉट विंड। सो मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है, लोकल कोल्ड विंड, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है नियर फ्रांस। हेयर यू कैन सी मिस्ट्रल, दिस, it is near to France, okay, and this whole is European continent, okay, Europe continent. Now moving on to the next question, the duration of monsoon in India extends for an average period of, this is pretty easy question, because अगर आप NCERT में एग्रीकल्चर या वेदर ऑफ इंडिया का पहला पेज ही खोलेंगे तो आपको, या मॉनसून इन इंडिया खोलेंगे तो आपको ये पहले ही उसमें दिख जाएगा, ये न्यूमेरिक्स। सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 2, option number 2, 100 to 120 days. So pretty easy and straightforward question. And basically that जो duration है, it starts from June to mid September, so 100 to 120 days. Now which one of the following is the natural vegetation of southeast China? The correct answer here is option number 1, subtropical broadleaf evergreen forest. Now the explanation is that the southeast China experiences temperate monsoon type of climate which is characterized by warm moist summer and cool and dry winter. So that's why ये जो एरिया है पूरा हमेशा एवरग्रीन तो रहेगा, ठीक है। वार्म मॉइस्ट समर है, सो इसलिए यानी मॉइस्चर है समर में, सो इसे हम सब ट्रॉपिकल एरिया बोल सकते हैं बिकॉज कूल एंड ड्राई विंटर है। सो दिस इज़ द रीज़न। सो एंड सम एग्जाम्पल मीन्स जो यहाँ पे ट्रीज उगते हैं, जो प्लांटेशन होती है वो होती है ओक, कैमेलिया, मग्नोलिया, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। सो ये ओशियन करंट्स का एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। द फर्स्ट ऑप्शन इज ओयाशियो करंट, सेकेंड इज अलास्का करंट, थर्ड इज एगुलस करंट, फोर्थ इज कैलिफोर्निया करंट। द करेक्ट आंसर इज एगुलस करंट, as you can clearly see this is Agulhas current, okay, इंडियन ओशन में। देन ओयाशियो, अलास्का, कैलिफोर्निया, ये है पैसिफिक ओशन में और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, फॉर टू बी एरिया टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्रॉट प्रोन कैटेगरी, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया शुड बी अंडर इरीगेशन। दिस इज अगेन अ करंट अफेयर्स related question based on geography. The correct answer here is 30% or more. Recently एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इसे रिवाइज किया था इस चीज़ को, सो करेक्ट आंसर इज 30% और मोर, ओके, as you can see here. So guys, this is the end of this session. I hope you're gonna like this session, and we will come with more and more sessions like this in future. Okay, so please appreciate our efforts, do like this video, please comment and yes, हमें बताएं कि हम the area where we can improve. Moreover, subscribe our channel, that is E Takshila Classes, and yes, please share this video with your friends. Thank you so much. Goodbye.